Alok is the chairman and managing director and group CEO of ixigo, a platform that has transformed the way Bharat travels. He shall share some numbers with you. I was just having a chat with him while we were waiting, and I asked him, "Bhai, बहुत crowded जगह है." Then Ajay came in and he said, "There's room for everybody." Then he gave me some numbers which actually shocked me, where his company is and where the others are. Let me leave that for him to detail. Like I said, he's a proud alumnus of the IIT Kanpur and INSEAD. Alok's journey from being a software engineer in France to a co-founder of ixigo in Bharat in 2007, which is not too long ago, right? Which is what, 17 years ago? Is nothing short of inspiring. His innovative approach has simplified travel for millions, putting Bharat's tourism industry on the global map. Mr. Bajpai, Shri Bajpai's achievements include multiple honors such as the Comeback Kid Award, don't mind, and the Entrepreneur of the Year in Service Business Travel. But beyond the awards lies a story of relentless dedication to enhancing travel experiences through technology. Alok's presentation today, the topic is enhancing tourism experiences through technology, the ixigo case study. Let's get on with this, Alok. Welcome. Clicker here? Is there a clicker? Bring up the presentation, please. Thank you. So, I think we've had some very insightful discussions here, and I learned a lot from both my colleagues on the stage in terms of where we are in the hospitality industry and some of the new innovations that we can all look forward to. So some of what I say might be a repetition, but I'll still say it anyway. But before I start, I wanted to wake some people in the room. So I wanted to ask a few questions. Does anyone know what percentage of Indians fly? कितने प्रतिशत भारतीय उड़ान लेते हैं? Any guesses? 35%. 4% सही जवाब. 4%. 4% of Indians fly, right? This is the insight I had back in 2011. And at that time, the number was actually lesser. It was less than 3%. When I realized that all online travel companies in India were actually in Bharat, were actually just copying the Western model, which is to say कि पहले flight बेचते हैं, फिर hotel बेचते हैं, फिर business बनाते हैं, right? Now the problem with this approach is कि भारत के लिए अगर आप बना रहे हो, flight cannot be at the center. भारत ट्रेन पे चलता है, भारत फ्लाइट पे नहीं चलता है, और 10 साल बाद भी ये स्टैटिस्टिक बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी. So the good news is yes, the market will grow. I think in 5 years we're going to double flight numbers. In 10 years we're going to probably do 3.5 times, but we will still be sub 10%, right? तो अगर इक्सिगो की स्टोरी समझनी है, अगर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमने क्यों किए वो समझने, तो सबसे पहली बात, भारत के लिए कुछ बनाना है तो सबके लिए बनाना है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो अच्छे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, अच्छे मॉल्स में घूम रहे हैं. भारत के इंसान के लिए वो यूजफुल होना चाहिए इनोवेशन. तो ये इनसाइट 2011 में जब हमें आई, और मोबाइल इंटरनेट थैंकफुली उस समय इमर्ज कर रहा था, उसके पहले हम भी वही वेस्टर्न टेम्पलेट लगा के फ्लाइट्स के लिए एक मेटा सर्च हमने बनाया था, जो कि आप क्रॉल करके हम दिखा देते थे कि बेस्ट फ्लाइट फेयर्स कहाँ पे हैं. और इस तरह के पोर्टल्स अब बहुत सारे आ गए हैं, स्काई स्कैनर, कायाक, एटसेट्रा एटसेट्रा. उस समय इंडिया में हम पहले थे और हमने वहां से शुरुआत करी. लेकिन जब हमने भारत के बारे में सोचा तो हमें लगा कि भारत के लिए इस समय, आज की डेट में भी मैं ये बोलूंगा कि भारत के लिए ट्रैवल ऐप एग्जिस्ट ही नहीं करती है,
क्योंकि भारत की जो नीड्स हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी महाकुंभ चालू होने वाला है जनवरी में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, कितने भारतीय महाकुंभ जाएंगे? अच्छा, इसका मतलब आपने कुछ सेशंस में ध्यान दिया है। यहाँ पे 40 करोड़ भारतीय, 40 राइट, 40 करोड़ ही है ना, 40 करोड़ भारतीय इन 40 days विल विजिट प्रयाग, बराबर। अगर आप पूरे मार्केट का साइज निकालोगे ना ट्रैवल का, वो 40 दिन में बनाया जा सकता है अगर कोई वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो जब भारत को अपॉर्चुनिटी को आप इस तरह देखते हो कि हमें सिर्फ उन 50 मिलियन लोगों के लिए नहीं बनाना है जो आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ सामान खरीद रहे हैं या घर पे फूड ऑर्डर कर रहे हैं, और पूरे भारत के लिए बनाना है, तो आप बहुत अलग तरह से बिजनेस बनाते हो और हमने उसी तरह से बनाया है। तो हमारी कहानी इस तरह से फर्क है। और मैं उसमें जाने के पहले एक बार फिर से नंबर्स दिखाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारा जो डेमोग्राफिक पिरामिड है, जो हाउस होल्ड इनकम का पिरामिड है, वो डायमंड बनने वाला है। इसका मतलब कि जो बेस था, जो जहां पे हमेशा बोलते थे कि यार ये गरीब लोग हैं, ये पैसे नहीं खर्च करते हैं, इनके लिए कुछ बनाना बेकार है, ये मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, ये धारणा गलत साबित होने वाली है। आपको पता है कि छोटा सा जो शैम्पू का सैशेट एफएमसीजी कंपनीज बनाती हैं, एक कंपनी कितने सैशेट बेचती है साल में? तीसरा सवाल, एनी गेसेस? It's more than a billion. It's more than a billion sachets a year, right? एक और सीक्रेट बताता हूँ, they make more margin on those sachets than they do on the shampoo bottle. ये तो पता होगा FMCG वालों को, है ना? तो एक ये धारणा है कि हमारे देश की जो गरीब जनता है उस पे आप बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। ये धारणा अगले 10 साल में खत्म होने वाली है और हमने किया है। और गरीब नहीं कहूंगा मैं उन्हें, मैं बोलूंगा कि वो एस्पायरिंग मिडिल क्लास है हमारी कंट्री का। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम आज जो 2-3 लाख साल के कमाते हैं, जिनको मैं कहूंगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में बैठते हैं, जो जिनको समझते हैं कि गरीब है, आपका फ्यूचर वही डिटरमिन करने वाले हैं। आप आज नहीं तो कल उनको ही सर्व करोगे। तो हम एस्पायर कर सकते हैं कि हम टूरिज्म इनबाउंड बढ़ाएं और 10 मिलियन को 20 मिलियन पहुंचा दे, 30 पहुंचा दे। लेकिन बेटर अप्रोच ये होगी कि अगर मैं गोवा में होटल हूं तो बदलती हुई प्रोफाइल को समझो। इटारसी से बंदा आ रहा है, इटावा से आ रहा है, उसको केटर करना सीखो, है ना? रशियंस पे मत सिर्फ जियो, किसी दिन अगर वहां पे आना बंद हो जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसको अभी हम समझते नहीं है, उसको अभी हम क्या चाहिए समझते नहीं है। अगर पहली बार कोई फर्स्ट टाइम फ्लायर आके हमारे बगल में बैठ जाता है, बेल्ट लगाना नहीं आता, हम हंसते हैं उस पर। शर्म आनी चाहिए हमको। उसको सिखाइए, वो पहली बार उठ के आया है, वो ट्रेन से चलता था बंदा, है ना? और वही आप बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारे जो 60 मिलियन फ्लायर्स हैं, जो करीब 150 मिलियन फ्लाइट्स लेते हैं, हम एक तरफ बोल रहे हैं कि ये नंबर डबल हो जाएगा। अरे डबल कहां से होगा? ये उसी बंदे से होगा जो आज थर्ड एसी में बैठ के घूम रहा है ट्रेन में। ये कोई दूसरा बंदा थोड़ी ना आ रहा है, उसकी तनख्वाह बढ़ गई, उसकी नौकरी लग गई, आज वो फ्लाइट बुक करना चालू कर रहा है, उसकी प्रोफाइल अलग है। उसको होटल से जो चाहिए वो बहुत अलग है। ही वॉन्ट्स अ बेसिक एक्सपीरियंस एट एन अफोर्डेबल प्राइस। दे आर नॉट प्राइस कॉन्शियस, दे आर वैल्यू कॉन्शियस। ऐसा नहीं है कि वो बंदा 100 रुपए, मैं अपने ऐप पे 20 रुपए स्लीपर पे, 40 रुपए एसी पे कन्वीनियंस फी चार्ज करता हूं। वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इन द कंट्री। अगर मैं कन्वीनियंस दे रहा हूं, लोग खुलेआम पैसा दे रहे हैं। Nobody minds doing that today. The world has changed. ये वो इंडिया नहीं है जहां पे आप 50 रुपए के लिए चिक चिक करते हो, ये वो भारत नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं, छोटे शहरों से, टियर 3, टियर 4 गांव से लोग आके खुशी खुशी अच्छी सर्विस के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। लेकिन जो सर्विस या प्रोडक्ट हमें क्रिएट करनी है वो नहीं एग्जिस्ट करती है। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द प्लैनेट राइट नाउ। एक भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इम्यून हो चुकी है।
मैं नहीं कह रहा कि हमें नहीं अतिथि देवो भव रखना चाहिए, बट उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि छोटे शहरों से जो आ रहे हैं, पहली बार गोवा केरला आ रहे हैं, पहली बार लक्षद्वीप जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम क्या उनको एजुकेट कर रहे हैं कि जब चेक इन करने वो बंदा आता है ना, उसको पता नहीं होता है कि चेक इन का मतलब क्या होता है। हम वहां पे चेक इन लिख देते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट पे बैगेज रख दिया, कहां चला जाएगा उसको पता ही नहीं है। आप अज्यूम कर रहे हो आपकी दुनिया उनको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, पहली बार आया है बेचारा। आपको इस तरह से सोचना चालू करना पड़ेगा अगर उस मार्केट को सर्व करना है। और हमने इस तरह से सोचा था बैक इन द डेज कि यार ट्रेन से जो जनता जाती है IRCTC पे जाके टिकट तो बुक कर लेती है, फिर जाके प्लेटफॉर्म जो है वो उसको कुली को पूछ रही है कि यार कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे जो लिखा है वो बदल गया, 4 वाली ट्रेन अब 9 पे आएगी। ठीक है, मेरा कोच कहां पे है? कोच यहां लिखा हुआ है S1 खड़ा हुआ है पीछे, सीट कहां पे है पता ही नहीं, क्योंकि सीट मैप होता ही नहीं है हमारे देश में, ट्रेन पे कहां होते हैं। ये प्रॉब्लम हमने 2012 में आइडेंटिफाई करी और हमने सॉल्व करना चालू कर दी। हमने कहा सीट मैप बनाते हैं, हमने अपने ऑफिस में सीट मैप बनाए बैठ के, हाथ से बनाए थे उस जमाने में, अब तो AI से बनते हैं। हमने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर हमारे यूजर्स ही बता देंगे, चेंज हो गया हमारे यूजर बता देगा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, 3 यूजर ने अगर बता दिया तो प्लेटफॉर्म पे चेंज कर लो, सबको दिख जाएगा। फिर प्रॉब्लम था यार ट्रेन कब आएगी, कहां पहुंची। आप जब भी ट्रेन से चलते हो तो आप उठते हो बीच में तो पूछते हो, सबसे ज्यादा यही चीज सुनाई पड़ेगी आपको ट्रेन में, कहां पहुंची। जैसे वो गाड़ी के ऐड में होता है कितना देती है, यहां पे होता है कहां पहुंची। अब कहां पहुंची में प्रॉब्लम ये है कि कोई एक्यूरेट वो बताता ही नहीं था, और एक्यूरेट बताने के लिए आप सिर्फ गूगल मैप्स की तरह या तो आपका बंदा ट्रेन में बैठा है उसकी लोकेशन यूज करके दूसरों को बता दो, और तो कोई तरीका था नहीं। तो हमने ये सब किया 2011, 12, 13 में। हम उस समय फंड रेज करते थे, लोग कहते थे आप ट्रेन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ तो पैसे ही नहीं बनते, यहाँ कोई धंधा नहीं खड़ा हो सकता, आप क्या कर रहे हो ये। क्योंकि हम टिकट नहीं बेचते थे, बिना टिकट बेचे हमने अपनी ऐप को मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बना दिया। इस इंडिया की मोस्ट डाउनलोड, वी वर 8th मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैवल ऐप इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर। एंड आज की डेट में वी डू ऑलमोस्ट 2 times एज मेनी डाउनलोड एज द नेक्स्ट OTA इन द मार्केट एवरी सिंगल डे। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की दुनिया को सिर्फ नहीं सर्व करूंगा, मैं भारत को सर्व करूंगा। मैं कुन्नूर से जो आ रहा है, रांची से जो आ रहा है, उसको उसी फर्वर से सर्व करूंगा जितना दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की, क्योंकि मुझे पता है मेरी दुनिया वो दुनिया जिस तरह से ग्रो करेगी, जो साहब आप 8% GDP ग्रोथ कहते हो आपको चाहिए, 6% चाहिए, 7% चाहिए। अरे बाबा, आपके बड़े शहर ऑलरेडी इससे फास्टर ग्रो कर रहे हैं। आप जब तक छोटे शहरों को इससे फास्ट नहीं ग्रो कराओगे, नहीं पहुंचेगी 8% ग्रोथ। कहां से आएगी? आपके गुड़गांव और साउथ बॉम्बे 10% ग्रो करेंगे, लेकिन आपका अगर गांव जो है 4% ग्रो करेगा, उससे तो होगा नहीं काम, है ना। तो आई थिंक इस तरह से सोचना हमें चालू करना पड़ेगा इंडस्ट्री में, तभी कुछ रेवोल्यूशन आएगा, तभी कुछ नए तरीके के बिजनेस मॉडल निकलेंगे और नए बिजनेस बनेंगे। एंड दैट्स व्हाट आवर स्टोरी इज ऑल अबाउट, दैट्स हाउ वी विल बिकम अ डायमंड। बिकॉज नीचे का पार्ट डायमंड का ऊपर पहुंच रहा है, वो तभी पहुंचेगा जब सर्विस प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बनेंगे, ना वेस्टर्न मॉडल कॉपी करके, बट इंडिया के लिए बना के, इंडियन प्रॉब्लम्स को इंडियन तरीके से सॉल्व करके, भारत के लिए बना के, जिससे कि हम प्राउडली कह सकें कि ये हमारा मेड इन भारत प्रोडक्ट है। और ये इसमें अच्छी बात क्या है, अगर आप इस तरह से बनाओगे ना, कोई बाहर की ताकत आके आपको हिला नहीं सकती, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने 8 लैंग्वेजेस में बना दिया, आपने ऐसी प्रॉब्लम्स जाके समझी गांव गांव में कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ट्रैवल में, स्पिरिचुअल टूरिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करी। बहुत मुश्किल है वो बना पाना, है ना। तो इस तरह से आपको हर इंडस्ट्री में सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन अमेजिंग रोल। मैं कहूंगा कि कैपेक्स पे जो इस गवर्नमेंट ने फोकस डाला है, ट्रेन हो चाहे बस हो चाहे फ्लाइट हो, हाईवे बनाने में, ट्रेन के नए डब्बे बनाने में, आप अगर वंदे भारत देखिए, आप अगर अमृत भारत एक्सप्रेस देखिए, जिस तरह से बन रही है हमारे देश में बुलेट ट्रेन। मैं BKC में देख रहा था कि आपका स्टेशन तो बहुत तेजी से तैयार हो रहा है, मतलब इट्स वेरी एक्साइटिंग कि यहाँ पे अगली बार हो सकता है जब आए 2 साल बाद इस इवेंट में, तो हो सकता है कि यहाँ पे शुभारंभ हो चुका हो उस चीज का। और ये चीजें जो है ना, अभी हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे यूरोप में मैं रहता था, तो पेरिस से लंदन अगर जाना हो
या पेरिस से या लंदन से ब्रसल्स जाना हो, तो ट्रेन बस फ्लाइट तीनों ऑलमोस्ट सेम दाम में, सेम एक्सपीरियंस में, इट यू वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि अब मैं क्या करूं, कि भाई मैं ट्रेन लूंगा तो सिटी के सेंटर में पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक अवॉइड करूंगा, फिर चेक इन का चिक चिक नहीं होगा, ऑल ऑफ दैट। तो अभी जो है, जो हमारी धारणा है कि ट्रेन वही बंदा लेता है जो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाता, वो बदलने वाली है। वो बदलने वाली है। बहुत सारे लोग फ्लाइट की जगह ट्रेन लेने वाले हैं और अनप्रेसिडेंटेड बूम आने वाली है इवन ऑन द ट्रेन साइड विद द काइंड ऑफ न्यू कोचेस दैट आर कमिंग इन। तो और दूसरी बात कि फ्लाइट में जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो भी उन्हीं लोगों से, अगर आप टीयर 2-3 एयरपोर्ट्स की बात करें, अयोध्या एयरपोर्ट आया, अयोध्या एयरपोर्ट पहले दिन 1 या 2 फ्लाइट की कनेक्टिविटी थी, अब वहां पे 6-7 फ्लाइट जाती हैं और मतलब बढ़ती जा रही है डिमांड। वाराणसी की हम बात कर चुके हैं, 20 गुना बढ़ा है गोवा से। तो यहाँ पे सरकार एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि ये मोमेंटम चलता रहे, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे हर साल, और ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ पेपर पे बट ऑन ग्राउंड एक्चुअली चीजें इंप्लीमेंट होती रहें। और स्पिरिचुअल टूरिज्म की हम बात करते हैं, बट एक्सेस इन सब जगहों का हमें अच्छा बनाना है। जैसे अब ताजमहल 20 साल पहले एक्सेस करना ही बहुत मुश्किल होता था, आज वो एक्सेस की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई है, कुछ हद तक अभी बाकी है लेकिन बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है। आप दिल्ली से बहुत फास्ट हाईवे से, एक्सप्रेसवे से पहुंच सकते हो, आप ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो गई है वहां पे। एंड आई थिंक ये चीज हमें हर जगह करनी है, ना सिर्फ टॉप 10 डेस्टिनेशंस में, बट हमें जहां जहां पे भी स्पिरिचुअल हमारे मंदिर हैं, जहां पे 1-1 लाख का फुटफॉल आता है पर डे, साउथ में इतने हैं, गुरुवायूर टेम्पल ले लीजिए, तो इन सब का हमें एक्सेस इंप्रूव करना है, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करनी है, और उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म लगभग 9% से ग्रो करेगा। जीडीपी अगर 6-7% ग्रो करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म उससे फास्टर ग्रो करता है, और ऑनलाइन ट्रैवल जो है वो उससे ऑलमोस्ट डबल से ग्रो करेगा। क्योंकि एक चीज अच्छी है भारतीय लोगों में कि हम टेक्नोलॉजी ना बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस मामले में हम दुनिया से सबसे आगे हैं। मतलब यूएस और यूरोप अभी तक मोबाइल एप्स समझ रहे हैं कि कैसे यूज करें, डेस्कटॉप में ही फंसे हुए हैं। हमने डेस्कटॉप कभी छुआ ही नहीं, हम सीधे मोबाइल एप्स पे आ गए। और एआई की दुनिया में हम एक्चुअली बहुत आगे चल रहे हैं। मतलब इंडियन कंपनीज जो इनोवेशन एआई यूज करके कर रही हैं, जिसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं लोग, बट बिहाइंड द सीन्स आप जितने भी ऐप डेली यूज कर रहे हैं ना, बहुत सारा एआई वहां पे यूज हो रहा है। और मैं 2-3 चीजें यहाँ पे वही बताना चाहूंगा एंड करने के लिए। बाय द वे, कितने लोग ऐसे हैं ऑडियंस में जो हमारा कोई ना कोई ऐप यूज करते हैं इन 4 ऐप्स में से? क्या बात है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है मार्केट शेयर का। बट जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जैसे लोग ही हमारा जोश बढ़ाते हैं। पीछे जाइएगा जरा इसको, हाँ, और पीछे बस। हाँ, तो एआई की थोड़ी बात कर लेते हैं अगर 1-2 मिनट बचा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात है कि भाई एआई कैसे यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ बज़वर्ड। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब हमने पहली बार ट्रेन टिकट बेचने चालू किया, 2017 की बात है, हम तब तक ऑलरेडी मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैवल ऐप बन चुके थे। सिर्फ यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन देके, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देके हमने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था। उस समय हमें लगा यार ये बड़े बड़े ओटीएस हैं, इसमें 3-3 हजार लोग काम करते हैं, 4-4 हजार लोग, अब हम ट्रांजैक्शनल बन जाएंगे, हम तो 200 लोगों की टीम है, कैसे काम होगा। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर मॉडल नाम की एक चीज यूज करके एक चैटबॉट बनाया 2017 में, ठीक है, जिसका नाम था तारा। और उसको हमने ट्रेन करना चालू किया, जो हमारा कस्टमर सपोर्ट करता था, क्योंकि हमने कहा हम छोटी टीम है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है यार, हम कहां से लगा पाएंगे 1000 लोग। आज की डेट में तारा 87% क्वेरीज एंड टू एंड हिंदी और इंग्लिश में फुल्ली ऑटोमेटेड हैंडल करता है चैट पे। और एज वी स्पीक तारा हैज बीन रोल्ड आउट ऑन वॉइस। People are having an end-to-end voice conversation in Hindi and English without realizing they're speaking to a bot. Hundreds of hours a day. अभी full rollout नहीं है, we are still training it, but hundreds of hours a day of conversations are already happening. So ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हम नहीं यूज कर सकते या हम नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं। This bot has been trained in-house. Transformer से start किया, अब GPT यूज कर रहे हैं, and now we are using open source models of our own. हमारे
इंडस्ट्री में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो किसी ने नहीं सॉल्व करी थी, और हमने रियलाइज किया कि यार कस्टमर से बात करो तब पता चलता है पेन एरिया क्या है। रिफंड टाइम पे नहीं आते थे किसी के, कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, भाई मेरा पैसा है वापस कर दो। 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है पहले। कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, हमने कहा इस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। हमने इक्सिगो अश्योर्ड बनाया, आप बटन दबाओगे रिफंड वापस, इररिस्पेक्टिव कि मुझे रिफंड मिले या ना मिले, एयरलाइन से या पीछे से कट के मिले, और कट के मिलने में भी दर्द होता है ना। तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करी, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, लोग फोन नहीं उठाते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई, कॉल सेंटर बात करनी है, क्यू में है, फोन नहीं उठ रहा है, जिस समय जरूरत है कोई फोन ही नहीं उठा रहा। हम हर क्वार्टर पब्लिश करते हैं कि हम 2 मिनट के अंदर कितनी कॉल्स उठाते हैं। लास्ट क्वार्टर 94.9% थी, और वो नंबर अभी भी हमें लगता है कि इट्स नॉट ग्रेट और इंप्रूव करना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इनोवेशंस यूज करके इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएं, एंड द ओनली वे टू डू इट इज थ्रू द यूज ऑफ एआई। 2 बस और एग्जांपल दे दूं, फिर मैं रैप अप कर लूंगा। वी हैव कम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। तो रेलवे में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपको जाना है, सारी सीटें वेट लिस्टेड है, अब यार क्या करें। पर फिर हमने रियलाइज किया, जब हम टिकट काउंटर पे खड़े होकर लेते हैं टिकट, तो वो बंदा बोलता है एक काम करो यार, ये वाले कोटा में नहीं है, आप अगले वाले स्टेशन के कोटा से ले लो। कहा यार ये चीज ऑनलाइन कोई क्यों नहीं कर रहा है? तो हमने क्या किया, नाउ वी डू ऑल द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन रियल टाइम ऑफ ऑल द स्टेशंस बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग दैट ट्रिप। अगर ब्रेक जर्नी करके दूसरी ट्रेन में भी डालना है तो डाल सकते हैं। आपको और कोई कंफर्म टिकट दे ना दे, बट इक्सिगो और कंफर्म टिकट देंगे, और वो इसलिए देंगे क्योंकि हमने उसमें एआई इतना ज्यादा अब लगा दिया है कि यार हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करता है क्या। क्योंकि जब एआई काम करता है ना, तो ह्यूमंस को भी बीट कर देता है। तो दैट्स हाउ वी आर डूइंग दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव लॉन्च समथिंग फॉर फ्लाइट्स कॉल्ड फ्लाइट ट्रैकर प्रो। फ्लाइट में प्रॉब्लम क्या होती है यार, गेट चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, या फिर वेब चेक इन कब खुलेगा। अब रात में 2 बजे का अलार्म कोई थोड़ी ना लगाएगा कि वेब चेक इन खुल गया है, अभी वेब चेक इन कर लो, क्योंकि 24 घंटा पहले या 48 घंटा पहले खुलता है। हमने एक बॉट बना दिया, वेब चेक इन खुलेगा, बॉट अंदर जाएगा, आपकी सीट ब्लॉक करेगा, आपका बोर्डिंग पास व्हाट्सएप पे भेज देगा, और आपके एप्पल वॉलेट और गूगल वॉलेट के अंदर पड़ा मिलेगा आपको सुबह। These are the kind of innovations that we are working on, and that's why we are growing faster than the market. Thank you.